Hello, all the students. Welcome once again. And today, students, we are going to take two more sets on decision making. And today, also, I'll be discussing two very important sets which were actually there in XAT 2024. But do understand, even if these are PYQs of XAT, this discussion is going to add a lot of value to your understanding and approach in solving the questions based on business decision making. Students, do understand, if you really want to master business decision making, what is more important to have a very good understanding of the PYQs first. Once your people go through all the PYQs, once you understand how we need to shortlist the options, how we need to actually leave the wrong options, that is something this discussion is going to help you a lot. So I want all the students go through this discussion thoroughly. Each and every question you people solve with us. And the best thing is, for each and every option, even if the option is wrong, I'll give you what is the reason for that. And the moment you understand that critical analysis, the critical way of getting the answer, I think students getting almost 100% accuracy in business decision making is very much possible. Okay. All the students, welcome live. Jaldi se aa jao. And we are going to start with the session. Yes. Chaliye, so business decision making, this becomes one very interesting area which is there in XAT. Only 21 questions will be there. And students, believe me, these 21 questions, they are going to be a big asset for the students whose quant or verbal may not be very strong. So you can actually bank upon this particular section. And today, students, the two sets which I am going to solve, one is anyway manageable, बहुत ज़्यादा lengthy भी नहीं है. But anyway, the second set, वो बहुत अच्छा है, data भी बहुत है. And वहाँ पर students answers देते समय, there are multiple factors which we need to consider. So, hi everyone, my name is Anil Chaudhary and we are going to start with today's session on XAT decision making. Okay? चलिए, so all the students, आज का जो session है, सबसे पहले before I take the question, इस पर मैंने बहुत elaborate discussion कल की क्लास में किया था. और कल स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था 10 पावर ऑफ 5 पॉइंट्स, और ये 5 पॉइंट्स अगर अपन ध्यान में रखें, एंड बिफोर गिविंग एनी आंसर, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड इफ यू जस्ट सी दैट पर्टिकुलर ऑप्शन whether it fits in this particular criteria or not, I think students accuracy will improve a lot. We people have to first of all understand, we need to identify the root cause, and whenever you give any particular answer, please see that answer has to be a balanced one. And then students, we have to think about the greater good, and we need to uphold ethics and values. And finally, students, before taking a call, always think about the possible demerits. इसमें students, ये जो 5 वाला 5th point है, ये 5th point अपने आप में बहुत important है. किसी भी ऑप्शन को मार्क करते समय अगर हम उस ऑप्शन के डीमेरिट्स को पहले से देखें, बिलीव मी स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे गलत आंसर्स अवॉइड हो जाएंगे. हमेशा किसी भी ऑप्शन को मार्क करते समय हम लोग generally we commit a mistake. We go with the positive assumption that this will happen and therefore this should become the answer. But students, we have to see the other side as well. We need to see that कि yes, इस particular option के demerits क्या हो सकते हैं. तो वो जो critical analysis है, that becomes the key point in getting the correct answers in this particular area. Okay? तो चलिए students, let us start with the session. इन 5 पॉइंट्स पर मैंने बहुत अच्छी तरह से कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, तो इसीलिए उस पर डिस्कशन मैं अभी नहीं करूंगा. ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने कल वाली क्लास को नहीं देखा, प्लीज जरूर गो थ्रू कर लो. ये पूरी सीरीज स्टूडेंट्स, वंस यू पीपल गो थ्रू विद अस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिजनेस डिसीजन मेकिंग को लेकर इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट सेट. Yes, hi all the students जो भी लाइव आ चुके हैं, फटाफट स्ट्रीम को लाइक भी करें एंड एट द सेम टाइम कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स आप टाइप कर दो चैट बॉक्स में, सो दैट आई कम टू नो दैट कौन कौन लाइव आ चुका है. एंड नाउ स्टूडेंट्स, दिस बिकम्स द वेरी फर्स्ट सेट. मैं एक बार ये सेट आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम टाइम टू गिव द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन. ओके, चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेट ऑल अबाउट. सबसे अच्छी बात इस सेट की ये है कि बहुत ज़्यादा लेंथी डेटा नहीं है. और वैसे भी स्टूडेंट्स, आप देखोगे XAT का जो डिसीजन मेकिंग होता है, जितने भी सेट्स हैं उन सबको कॉम्प्रहेंड करना बहुत मुश्किल नहीं होता. प्रॉब्लम आती है ऑप्शंस में, और बहुत सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स हमें बहुत कन्विंसिंग लगते हैं. और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली समझें. ओके,
एनीवे स्टूडेंट्स, इन सब पर मैंने कल वाली क्लास में बहुत डिटेल से बताया था. सो आई विल फोकस डायरेक्टली ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके, नाउ कमिंग ऑन. ABC Business School was a school with a difference. Regarded as one of the top business schools in Western India, but relatively unknown beyond that, the school catered to smaller organizations seeking to hire students for sales and marketing positions, with occasional openings in HR roles as well. These students were open to secure job opportunities even if they offered relatively lower salaries. The organizations that recruited from ABC did not really care for the talent, but appreciated the students' ability to follow orders without questioning them. The school's strength lay in its alumni who consistently returned to the institution for recruitment, thereby ensuring the school's continued existence. Given the placement record, the school attracted a specific segment of business school aspirants who wanted a solid job but were not excited about learning. The students do understand, given the placement record, the school attracted a specific segment of business school aspirants who wanted a solid job but were not excited about learning. हमेशा स्टूडेंट्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन्ड है उसे अच्छी तरह से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि जो डेटा है उसे कम से कम 2 बार अपन ज़रूर पढ़ें. मेनी टाइम्स इट हैपन्स लाइक कि एक बार जब आप डेटा को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ओवरलुक कर देते हैं. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल 2 बार डेटा को पढ़ो एंड देन यू पीपल स्टार्ट गिविंग दी आंसर्स. तो एनीवे स्टूडेंट्स, ABC बिजनेस स्कूल के बारे में सम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस. तो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लर्निंग को लेकर बहुत एक्साइटेड नहीं होते हैं. एंड मोर ओवर जो ABC बिजनेस स्कूल के जो अलमनाई हैं, they themselves have become the recruiters now and they keep coming to the ABC business school and वो students को hire करते रहते हैं. और वैसे भी ये जितने भी recruiters हैं, they don't want very creative and free thinking students. They want such students जो simply उनके order को follow करें. तो इस तरह से एक system बना हुआ है and this ABC business school is going on. Now see. Coming on the first question. Recently, some alumni of ABC pretend that their children should be given preference in admissions or they would withdraw as recruiters. The director was, however, hesitant about allowing alumni to interfere in running the school because the fairness of the admissions process has earned ABC high respect within the corporate world that recruited from the school. अब स्टूडेंट्स डिलेमा क्या है वो समझ में आ गया. एलुमनाई सेज दैट कि हमारे बच्चों को एडमिशन में प्रेफरेंस मिलना चाहिए, अदरवाइज हम आपके कॉलेज में फिर रिक्रूटमेंट करने के लिए नहीं आएंगे. एंड नाउ द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज ही एक्चुअली वांट्स दैट कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो और एलुमनाई का कहीं पर भी इंटरफेरेंस हमारे कॉलेज की वर्किंग में और स्पेशली एडमिशन्स के प्रोसेस में नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल स्पॉइल द हार्ड एंड रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज एज वेल. एंड नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज. Which of the following reasons, if true, will best help the director not to worry about pandering to those alumni? हमेशा स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझो. क्वेश्चन ये नहीं है कि डायरेक्टर को क्या करना चाहिए. तो डायरेक्टर को क्या करना चाहिए इज नॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन बेसिकली ये है, इन 5 ऑप्शंस में से स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन ऐसा है, अब के कौन सा ऑप्शन ऐसा है या कौन सा रीजन ऐसा है विल बेस्ट हेल्प द डायरेक्टर नॉट टू वरी about pandering to those alumni. Okay, the students, let us see which is the correct answer. I see some of the students giving the answer. Okay, मैं one by one सारे options को पढ़ूंगा. Try to understand. First option, no business school in the region has allowed alumni any say in managing the operations. भाई किसी भी business school ने ऐसा नहीं किया, but possibly students हर business school की situation अलग अलग होगी. हम तो स्टूडेंट्स अपने बिजनेस स्कूल की बात कर सकते हैं और ये जो प्रेशर अलुमनाई आर ट्राइंग टू बिल्ड अपॉन अस, वी नीड टू टेक अ कॉल फॉर दैट. तो ये कहना या ये जो पॉसिबल रीज़न है कि किसी और बिजनेस स्कूल में इस तरह का दबाव नहीं है, आई थिंक स्टूडेंट्स दैट डज नॉट बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न ओके व्हाई द डायरेक्टर शुड नॉट वरी. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन एनीवे कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर.
Coming on the second option, ABC has not entertained any request from the alumni till date. अभी तक हमने alumni की किसी रिक्वेस्ट को नहीं माना. That is the reason हम अभी भी नहीं मानेंगे. And the director should not worry. I think students, even this option is very much hollow, and this is not at all a very strong reason. तो अभी तक हमने नहीं माना, therefore हम नहीं मानेंगे is not correct. Possibly students इस तरह की रिक्वेस्ट कि आप हमारे बच्चों को एडमिशन में प्रेफरेंस दें, पॉसिबली ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ हो. एंड मोरओवर स्टूडेंट्स, इस बार इट इज नॉट ओनली जस्ट अ रिक्वेस्ट, साथ में स्टूडेंट्स इट बिकम्स देयर इज एन अल्टीमेटम ऑल्सो दैट वी विल विथड्रॉ एज रिक्रूटर्स. तो इसीलिए स्टूडेंट्स हमने कभी नहीं माना, so that does not become a strong reason. Coming on the third option, the alumni depend upon ABC's success to enhance their employability. थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि एलुमनाई को भी इस कॉलेज की ज़रूरत है. एलुमनाई के लिए भी स्टूडेंट्स अपनी कंपनीज को रन करना, एम्प्लॉयबिलिटी को बनाए रखना, फॉर दैट एबीसी की सक्सेस इज नीडेड फॉर देम ऑल्सो. आई थिंक स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर होगा दैट विल बी थर्ड ऑप्शन, बिकॉज थर्ड ऑप्शन कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि इट इज़ नॉट ओनली द कॉलेज who requires or which requires the alumni. Even the alumni, they require the success of this college. अगर कॉलेज में स्टूडेंट्स, if these alumni they don't come to the college for recruitment, तो नुकसान सिर्फ कॉलेज का नहीं होगा, नुकसान यहाँ पर स्टूडेंट्स alumni का भी होगा. और जब डायरेक्टर को ये पता चलेगा कि alumni का भी यहाँ पर लॉस है, तो पॉसिबली डायरेक्टर will not worry as far as this particular request is concerned. स्टूडेंट्स आप जस्ट इमेजिन करो, थोड़ा सा भी लॉजिक अगर अपन लगाएंगे तो दिस क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल टू गिव द आंसर. द मोमेंट द डायरेक्टर रियलाइजेस दैट इफ द alumni आर नॉट कमिंग फॉर रिक्रूटमेंट, इवन दे आर एट लॉस, सो दैट विल रिलीव द डायरेक्टर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वरी. तो इसीलिए स्टूडेंट्स मुझे लगता है सी बिकम्स द बेस्ट आंसर. और वैसे भी स्टूडेंट्स आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो यू विल एक्चुअली कम टू नो एलुमनाई इस कॉलेज में क्यों आते हैं. बिकॉज वो अप्रिशिएट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं दे जस्ट कीप फॉलोइंग देयर ऑर्डर्स एंड जैसा बोला जाता है वैसा कर लेते हैं. तो इसीलिए एलुमनाई को भी इन बच्चों की ज़रूरत है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज को एलुमनाई की ज़रूरत है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स अगर एलुमनाई रिक्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टर नहीं भी मानता है तो डायरेक्टर कैन बी एश्योर्ड कि एलुमनाई कहीं पर भी जाने वाले नहीं हैं, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट आवर स्टूडेंट्स. आई गेस द पॉइंट इज ओके, डन. Coming on fourth option, the alumni were the reason that ABC was able to attract corporates. Anyway, students, fourth option कहीं पर भी डायरेक्टर की वरी को दूर नहीं करता है. फोर्थ ऑप्शन तो इनफैक्ट डायरेक्टर्स की वरी को बढ़ा देता है. Anyway, students, fourth option cannot be the correct answer. And some of the alumni were regularly teaching as guest faculty in the school. Even fifth option cannot be the correct answer. अगर कुछ alumni पढ़ाते भी हैं तो ये तो डायरेक्टर की चिंता को और बढ़ाएगा. तो इसका मतलब तो ये है कि डायरेक्टर पर और दबाव होगा कि वो alumni की रिक्वेस्ट को माने. तो इसीलिए दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड थर्ड ऑप्शन इंडीड बिकम्स द करेक्ट आंसर. बट फिर भी स्टूडेंट्स आई वांट कि मैं सारे ऑप्शंस को आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करूं सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ अप्रोच व्हिच इज नीडेड. चलिए, नाउ कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. Yes, all the students go through this particular question and give the answer. Let me see how many students are able to give the answer. Okay, yes. Shalom, Avni, come on, best of the students. इसके बाद वाला जो मैं second set लूँगा, that is a very interesting set और that is a complex one also. ये वाला थोड़ा सा easy था, let us take it first. और वहाँ पर भी students आप ध्यान रखना, proper selection of the questions is very important. ऐसा नहीं कि हम बहुत टफ वाले सेट में उलझ जाएं जहां पर ऑप्शन ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है. एनीवे, दिस वाज एन इजी वन, सो यू पीपल जस्ट इंश्योर दैट कि ऐसे क्वेश्चंस हमको मिस बिल्कुल नहीं करने हैं. Yes, come on, start giving the answers now. Okay, Raghuveer has given the answer. Okay, come on, best of the students. Yes, yes, yes. चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना. डन. आई सी सम ऑफ द स्टूडेंट्स गिविंग द आंसर्स. डन. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फटाफट.
आई डू अंडरस्टैंड अभी 2-3 दिन बच्चे थोड़े से स्नैप में ज़्यादा बिजी हैं, बट उसके बाद दे विल बिकम मोर फोकस्ड ऑन दैट. बट एनीवे स्टूडेंट्स, ये जो कलेक्शन ऑफ वीडियोस हैं, दिस कलेक्शन इज गोइंग टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स इवन लेटर ऑन ऑल्सो. ओके, शलोम हैज गिवन द आंसर. ठीक है, चलो देखना स्टार्ट करें. अवनी, व्हाट इज योर आंसर? ऑलराइट. अब स्टूडेंट्स आप देखो, अक्रॉस द कंट्री बिजनेस स्कूल्स वर रैंक्ड बाय पॉपुलर मैगजीन्स. A few business schools in the same region were applying for rankings, hoping that rankings will affect their visibility among corporate houses and recruiters. A few business schools in the same region were applying for rankings, hoping that rankings will affect their visibility among corporate houses and recruiters. To achieve a good rank, ABC faculty members who have primarily focused on teaching thus far would need to actively engage in research and consulting activities. The director was aware that asking the faculty to switch to research would not be easy. Which of the following facts will best help the director not to worry about applying for rankings? तो स्टूडेंट्स आप समझना, बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स हैं जो रैंकिंग्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर एबीसी भी अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए व्हाट इज नीडेड इज फैकल्टीज शुड गो फॉर रिसर्च, तभी उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी आ सकती है. आप सोचो स्टूडेंट्स, डायरेक्टर को ये पता है कि अगर मैं अपनी फैकल्टीज को बोलूंगा कि यू हैव टू गो फॉर रिसर्च, दे मे नॉट बी विलिंग फॉर इट. बट एनीवे स्टूडेंट्स, इन 5 ऑप्शंस में से यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हिच ऑप्शन विल रिलीव द डायरेक्टर फ्रॉम नॉट अप्लाइंग फॉर रैंकिंग. तो कौन सा ऑप्शन डायरेक्टर को ये एश्योरेंस देगा कि अगर अपन अप्लाई ना भी करें रैंकिंग के प्रोसेस में तो भी हमारा काम बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा. तो क्या लगता है स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली. I see so many students giving third option as the answer. The alumni are aware that ABC offers a retainable challenge pool. Absolutely. Alumni को पहले से पता है कि ABC ऐसे बच्चे देते हैं, ऐसे बच्चे दे देता है जिसको रिटेन करना इज ईजी. और वैसे भी स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ को भी पढ़ो तो alumni को who themselves are the recruiters, they know that जो स्टूडेंट्स ABC से आते हैं वो जैसा बोला जाता है वैसा कर लेते हैं. एंड ये थर्ड ऑप्शन F2, इसका मतलब है स्टूडेंट्स इसको सच मान के चलना है. इसका मतलब है स्टूडेंट्स, अलुमनाई को पता है कि ये जो बच्चे हैं ये रिटेनेबल हैं. तो इसका मतलब है डायरेक्टर कैन बी अश्योर्ड अबाउट कि अगर हम रैंकिंग्स में नहीं भी जाएं तो भी स्टूडेंट्स हमारे बच्चों के प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाएंगे. तो दैट विल नॉट बी अ ट्रबल. तो यस, थर्ड ऑप्शन इंडीड बिकम्स द करेक्ट आंसर. और भी कोई ऑप्शन आपको लगता है कि आई शुड डिस्कस, तो यू पीपल कैन टेल मी, बट इंडीड थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली ओके. मैं फटाफट 1-2 ऑप्शंस को और देख लेता हूँ. ABC's placements in the previous year were completed in 4 days. अब लास्ट ईयर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो गए, 4 दिन में कंप्लीट हो गए. दैट कैन नॉट जस्टिफाई कि फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहेगा. इसीलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन हमें लगता है कैन बी द करेक्ट आंसर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. हो सकता है लास्ट ईयर 4 डेज में हो गया, बट अगर हम रैंकिंग में पार्टिसिपेट ना करें तो स्लोली स्टेडिली आने वाले सालों में प्लेसमेंट्स कैन डिटेरियोरेट ऑल्सो. इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर. सेकेंड ऑप्शन, ABC could never break into the top 40 ranks in the country when it applied earlier. सेकेंड ऑप्शन कहता है वैसे भी हमने पहले भी जब अप्लाई किया तो टॉप 40 में तो हम आ ही नहीं पा रहे हैं. तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एप्लीकेशन? मुझे लगता है स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन तो एक नेगेटिव रीजन दे रहा है कि वैसे भी रैंकिंग में अप्लाई करने से कुछ होगा नहीं. अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक उससे एनी टाइम बेटर ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन. तो एक्चुअली इट गिव्स अ पॉजिटिव रीजन टू द डायरेक्टर दैट ही शुड नॉट वरी फॉर रैंकिंग. ये कहना कि पहले भी मैंने अप्लाई किया था, बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं मिली थी, एनीवे वी कैन बी रिलीव्ड ऑफ अप्लाइंग नाउ एज वेल. एनीवे दैट इज नॉट अ जस्टिफाइड रीजन. Fourth, the alumni do not care for the teachers or classes in general. The alumni do not care for teachers or classes in general. Anyway, students अगर alumni care करते ही नहीं है तो आप रैंकिंग में जाओगे. देखो आप समझो, the alumni do not care for the teachers or classes in general. You people try to understand. alumni कौन है? जो इसके बेस्ट रिक्रूटर्स भी हैं. Okay, and alumni don't care for teachers and classes in general. अगर मैं मान लूँ कि alumni they don't care for teachers and classes, they just want students and ऐसे students जो कहते हैं वो फॉलो कर लें बस, that's it. मुझे लगता है फोर्थ ऑप्शन कहीं ना कहीं ये बताता है
एलुमनाई टीचर्स एंड क्लासेस को लेकर कंसर्न नहीं है, बट हो सकता है अच्छी रैंकिंग मिल जाए तो उसको लेकर वो कंसर्न हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है कि फोर्थ ऑप्शन ये कहता है कि वैसे भी एलुमनाई को किसी चीज़ से कंसर्न है ही नहीं, अंडरस्टैंड, बट ये थोड़ा सा स्लाइटली आउट ऑफ सिंक है। देखो किसी भी डायरेक्टर का मेन कंसर्न क्या है और रैंकिंग लेने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उस बिजनेस स्कूल का थोड़ा सा नाम हो जाए, और नाम होने के पीछे लॉजिक क्या है कि जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से चलते रहे। थर्ड ऑप्शन बहुत क्लियर कट ये कहता है कि एलुमनाई को वैसे भी पता है कि जो बच्चे यहाँ से मिलते हैं वो रिटेनेबल होते हैं, तो इसीलिए एलुमनाई विल कीप कमिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस कॉलेज का बहुत अच्छा नाम नहीं भी होता है तो एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि प्लेसमेंट्स विल नॉट बी एन इश्यू। मुझे लगता है स्टूडेंट्स वन वी कंपेयर विद डी थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है, बट एनीवे सी तो बहुत डायरेक्टली एक स्ट्रांग रीजन है। तो यस, वी पीपल कैन स्टिक विद सी। So alumni do not care for teachers or classes in general. This does not relieve the director from that particular worry. And fifth कहता है the alumni do not follow research publications in general. Okay, alumni do not follow research publications in general. अरे माना alumni हो सकता है research publications ना पढ़े, लेकिन फिर भी उसके बेसिस पर रैंकिंग तो मिलती है ना, वो रैंकिंग तो इम्पोर्टेंट हो सकती है ना, तो इसीलिए alumni हो सकता है दिन वो रिसर्च पब्लिकेशंस ना पढ़े, और उन्हें रिसर्च पब्लिकेशंस पढ़वाना पर्पस भी नहीं है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स फिफ्थ ऑप्शन इज एनीवे नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, हम यहाँ पर रैंकिंग की बात कर रहे हैं। एलुमनाई रिसर्च पब्लिकेशन पढ़ता है कि नहीं पढ़ता इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। हमें तो ये देखना है कि रैंकिंग में अगर मैं नहीं जाता हूँ तो कॉलेज का कोई लॉस है क्या, और कॉलेज का लॉस केवल एक चीज पे हो सकता है कि रैंकिंग पे नहीं जाने से कॉर्पोरेट लेवल पे उसका रेपुटेशन डाउन हो और रिक्रूटमेंट सफर करे। बट थर्ड ऑप्शन डायरेक्टर को यह एश्योरेंस देता है कि रिक्रूटमेंट सफर करने वाला नहीं है। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स द बेस्ट आंसर हियर इज थर्ड ऑप्शन, इंडीड करेक्ट। चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। क्या बात है सलील, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। सलील सेज सर आपके वर्बल वीडियोस की वजह से एनमैथ 251 आया, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब सलील बहुत जल्दी से वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर GDPI बैच and I'm very confident if you become the part of that GDPI batch, it will help you a lot in converting all the calls as well. Okay, chale coming on students, question number 3. A few faculty members complained to the director regarding the lack of attendance and seriousness among many students during classes and exams. The director knew that this had been the case for decades but became more rampant in the last few years. He was also aware that the classes were mostly rituals conducted to tell the world that ABC believed in education and had little bearing on placements. However, he believed that students must be told to attend classes and take exams with serious attitude. So which of the following announcements by the director will best ensure that faculty stop complaining about students' attendance? Okay, हमेशा code issue को समझना। But what is the code issue? कि faculty complain करती है कि बच्चे क्लासेस और एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, और डायरेक्टर को ये पता है कि फॉर डिकेड्स बट बिकेम मोर रैम्पेंट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। हालांकि पहले से भी बच्चे बहुत सीरियसली लेते नहीं थे, बट पिछले कुछ सालों में ये और ज़्यादा रैम्पेंट हो गया। हालांकि डायरेक्टर को ये भी पता है कि ही वाज आल्सो अवेयर दैट क्लासेस वर मोस्टली रिचुअल्स conducted to tell the world that ABC believed in education and had little bearing on placements. The director is assured even if the students are not taking the classes and exams seriously, they will get the placements. हालांकि ये भी डायरेक्टर चाहता है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी टोल्ड टू अटेंड क्लासेस एंड टेक एग्जाम्स विद सीरियस एटीट्यूड। तो इसीलिए डायरेक्टर की जो साइकोलॉजी है, his wish we people have to understand thoroughly. And now which option will best ensure that फैकल्टी की जो कंप्लेन है वो एंड हो जाए, अंडरस्टैंड। वैसे फैकल्टी कंप्लेन को लेकर डायरेक्टर बहुत परेशान नहीं है। ओके, अच्छा सॉरी, यूं प्रेजेंट में करता हूं कि डायरेक्टर बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं उस बात से परेशान नहीं है। डायरेक्टर सिर्फ ये चाहता है कि फैकल्टी कंप्लेन करना बंद करते हैं। ओके, तो कौन सा बेस्ट डिसीजन होगा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो चलो बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा। ओके, शलोम हैज गिवन द आंसर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन कहता है फैकल्टी मेंबर्स हु मेक क्लासेस वेरी एंगेजिंग शुड बी फेलिसिटेटेड ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन।
क्या इशू ये है कि फैकल्टी मेंबर्स आर नॉट गेटिंग द रिकॉग्निशन? मैंने देखा है कई बार इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे फर्स्ट भी मार्क करते हैं, बट यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन इशू। क्या मेन इशू ये है कि फैकल्टी मेंबर्स आर नॉट गेटिंग द रिकॉग्निशन एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कंप्लेनिंग? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू एड्रेस द इशू। ओके, एंड इफ यू सी दैट कि रिकॉग्निशन की वजह से फैकल्टी मेंबर्स क्लासेस को एंगेजिंग बना देंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट्स बैठना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है उससे थोड़ी सी अटेंडेंस बढ़ भी जाए, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं still who may not be taking the classes seriously। तो हो सकता है इसके बावजूद फैकल्टी की कंप्लेन एज इट इज बनी रहे। इट्स नॉट अ फुल प्रूफ solution basically। okay, now coming on। okay, Avni, third, students should be rewarded for contributing to, second, students should be asked to pay a monetary penalty for missing classes। क्या लगता है स्टूडेंट्स, मॉनिटरी पेनल्टी फॉर मिसिंग क्लासेस, विल इट बी सुटेबल? अच्छा, मान लो आपने मॉनिटरी पेनल्टी लगा दी, भाई बच्चों क्लासेस बैठना पड़ेगा, नहीं तो यू विल हैव टू पे दिस पेनल्टी। अब यू जस्ट अंडरस्टैंड, हो सकता है बच्चे बिंदास हो जाएं, ओके सर आप तो पेनल्टी लो और हमको फ्री करो। ऐसा भी तो होता है, मैं बहुत सारे कॉलेजेस में देखता हूँ मॉनिटरी पेनल्टी कुछ बच्चों को मोटिवेट भी करती है। तो कई सारे बच्चे जो वेल ऑफ हैं, पॉसिबली ओके, they will say like ठीक है सर, we will pay the penalty but don't force us then। okay, तो yes, फिर भी मैं मानता हूँ कि monetary penalty that can become one compulsion on the students and that can force the students to attend। but let me see क्या कोई better options है या नहीं। तो B can be a suitable choice। देखते हैं। Students should be rewarded for contributing to in-class discussions and learnings। okay, students को reward करना, ओके, कि भाई अगर आप इन क्लास कंट्रीब्यूशन करोगे तो आपको ओके क्या लगता है इससे इंप्रूवमेंट आएगा, फैकल्टी की कंप्लेन दूर हो सकती है कुछ हद तक पॉसिबली अगर आप स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करोगे। बट कैसे करोगे? क्या मॉनिटरीली रिवॉर्ड करोगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दोगे या व्हाट विल हैपन? ओके, तो ये भी कुछ हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट वी हैव टू सी विल बेस्ट इंश्योर दैट। इसीलिए स्टूडेंट्स सभी ऑप्शंस कुछ हद तक हेल्प करेंगे। इसीलिए स्टूडेंट जो पीपल शुड अंडरस्टैंड एक गलत आंसर और एक सही आंसर, अ रॉन्ग आंसर करेक्ट, बिटवीन दीज टू इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस दैट इज नॉट सच अ बिग डील। बट व्हेन ऑल द ऑप्शन सीम्स टू बी ओके, उनमें से करेक्ट आंसर निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो वेट एंड वॉच। स्टूडेंट्स हु अटेंड एवरी क्लास शुड बी गिवन थैंक यू नोट्स फ्रॉम द डायरेक्टर। आई थिंक दिस कैन बी मीनिंगलेस। क्या लगता है, स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलने से स्टूडेंट्स विल बी रेगुलर? आई डोंट थिंक सो। And fifth option, only students, and moreover you people will have to understand, इस पूरे कॉलेज में, बी स्कूल में स्टूडेंट्स जनरली कम टू हैव वेरी गुड प्लेसमेंट्स। एंड देखो यहाँ पर क्या लिखा है, these students were open to secure job opportunities even if they offer relatively lower salaries। तो इस कॉलेज में कोई बच्चे बहुत पढ़ाकू आते हैं, बहुत स्टूडियस आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट आते हैं, ऐसा नहीं। एवरेज बच्चे हैं, उन्हें एक ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाए, दैट इज वॉट दे आर कमिंग फॉर। So they are actually coming for placement and that becomes the core purpose of joining this college। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स अगर उस प्लेसमेंट को लेकर ही कोई डिसीजन ले लें, जैसे फिफ्थ ऑप्शन, ओनली स्टूडेंट्स विद एटलीस्ट 85% अटेंडेंस विल पार्टिसिपेट इन प्लेसमेंट्स। आई थिंक फिफ्थ ऑप्शन ओके इतना स्ट्रिक्ट ओके ये डिसीजन होगा कि प्लेसमेंट्स में बैठना है तो 85% अटेंडेंस। अब स्टूडेंट्स आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, स्टूडेंट्स को बैठना ही पड़ेगा और जैसे ही स्टूडेंट्स बैठेंगे ऑफ कोर्स फैकल्टी की कंप्लेन वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मुझे लगता है यहाँ पर अगर मैं फिफ्थ ऑप्शन, यस हालांकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स फिफ्थ ऑप्शन सीम्स टू बी एक्सट्रीम, बट अगर मैं सब ऑप्शंस को कंपेयर करूँ, बेस्ट इंश्योर दैट कि फैकल्टी की कंप्लेन खत्म हो जाए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर फैकल्टी की कंप्लेन तो खत्म हो ही जाएगी। हालांकि मैं समझता हूँ इसका डिसएडवांटेज लॉन्ग टर्म में कुछ और हो सकता है, बट when we talk about faculty's complaint, the moment all the students who are taking admission, they are compelled to sit for 85% of the days, I think faculty का जो complaint solve करने का जो core issue है वो तो निपट जाएगा। हालांकि इसके drawbacks हो सकते हैं जो long term में ABC B स्कूल को face करना पड़े। पर स्टूडेंट्स आप देखो हमारा core issue क्या है, हमें सबसे पहले तो उसको solve करना। मैं जानता हूं कि फिफ्थ ऑप्शन कुछ हद तक बहुत एक्सट्रीम है एंड आई डू अंडरस्टैंड कई सारे स्टूडेंट्स फिफ्थ ऑप्शन से डिसएग्री भी कर सकते हैं,
बट एनीवे स्टूडेंट्स, अगर मैं सभी ऑप्शंस को कंपेयर करूं, प्लेसमेंट इज समथिंग व्हिच द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर। अगर मैं प्लेसमेंट्स पर ही हिट करूं कि चल इसको 85% अटेंडेंस कर देते हैं, अगर प्लेसमेंट चाहिए तो यू विल हैव टू से। आई थिंक स्टूडेंट्स, ये डिसीजन तो ऐसा है कि फैकल्टी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। ओके, तो क्या लगता है, शैल वी गो विथ फिफ्थ? यस इंडीड, आई विल गो विथ फिफ्थ ऑप्शन इन दिस केस, क्योंकि और कोई ऑप्शन बी और सी को अगर मैं वापस देखूं, मॉनिटरी पेनाल्टी विल नॉट बी फिजिबल। वैसे भी जो बच्चे हैं लोअर सैलरीज पर भी काम करने को तैयार हैं, तो ये कोई वेल ऑफ तो है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि सर वो पैसा बचाने के लिए बैठना स्टार्ट कर दें, बट मुझे लगता है उससे एनी टाइम बेटर होगा कि अटेंडेंस को कंपलसरी कर दो, क्योंकि अगर मॉनिटरी पेनाल्टी भी लगाएंगे तो उसका भी लॉन्ग टर्म में उसी तरह का ड्रॉबैक हो सकता है, डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके भाई, मॉनिटरी पेनाल्टी लगाने का मतलब क्या? आप एक तरह से अटेंडेंस ही तो कंपलसरी कर रहे हो। अच्छा, मॉनिटरी पेनाल्टी लगाओगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाएगा कि कॉलेज सीम्स टू बी वेरी मच ग्रीडी इन अर्निंग मोर मनी। तो मुझे लगता है उससे बेटर है कि अगर मैं अटेंडेंस को कंपलसरी करता हूँ तो एक मैसेज जाएगा कि कॉलेज एक्चुअली सीरियस एजुकेशन देना भी चाहता है। एंड इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन भी थी कि डायरेक्टर हाउएवर बिलीव दैट स्टूडेंट्स मस्ट बी टोल्ड टू अटेंड क्लासेस। तो यस, फिफ्थ ऑप्शन सीम्स टू बी अ बेटर चॉइस। यस, विच वन धनराज, कौन सा इफेक्टिव लगता है? नहीं, पेनाल्टी वाला मुझे बहुत इफेक्टिव नहीं लगता। ओके, उससे तो और मैसेज नेगेटिव जाएगा, ठीक है, और ये भी मैसेज जाएगा कि डायरेक्टर कहीं ना कहीं पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड है रादर दैन। तो फिफ्थ में डायरेक्टर जो चाहता है कि बच्चे पढ़ें वो ज्यादा फुलफिल होगा, तो इसीलिए बेटर ऑप्शन है फिफ्थ। एंड देयर आर मेनी सच कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, एंड इफ आई टॉक अबाउट एनएम कॉलेज इटसेल्फ, यस, वहां पर भी अटेंडेंस इज वेरी कंपलसरी, वेरी मच कंपलसरी, एंड कई सारे बच्चे उसकी वजह से सफर भी करते हैं, बट एनीवे दैट इज द पॉलिसी विच इज देयर। इसीलिए स्टूडेंट्स, फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो I will go with fifth option. That seems to be the best one. Students, CAT 2025 के हमारे courses launch हो चुके हैं. Please ensure that if you people are looking for this, don't miss it. And आपके जितने भी juniors हैं, I know कि you people will be taking XAT 2025, but आपके जो juniors हैं, please convey the message. अगर बहुत अच्छी education वो चाहते हैं, एक अच्छी training for CAT, affordable pricing पर, तो yes, this becomes a very good option. अब स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपके सामने, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, ये भी XAT 2024 का क्वेश्चन है। ये जो स्लाइड है, द कंप्लीट डेटा इज गिवन टू यू, गो थ्रू द डेटा थरोली, एंड उसके बाद मैं 3 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाइट कंफ्यूजिंग एज वेल। यस, ओके कीर्तन, एनएम में अटेंडेंस कंपलसरी है ना? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे बच्चे शेयर करते रहते हैं, देखिए कंप्लेनिंग ऑल्सो कि सर ये तो हम तो क्या सोच कर गए थे एंड दिस दैट, पर ठीक है, जो है सो है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन द पॉलिसी ऑफ एनी कॉलेज। यस, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो मेरे साथ एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इस पूरे डेटा को। So deep sea is a natural gas attraction company that retrieves natural gas from rock formations beneath the seabed. This gas is then transported through its extensive pipeline network to a bottling plant located at the sea surface for processing. The gas in rock formations is pressurized, enabling it to float to the surface and reach the bottling plant. Yet excessive pressure can cause burst in the pipeline, leading to uncontrolled gas release known as blowouts. Okay, समझना, what is the meaning of blowout? तो कई बार स्टूडेंट्स, अगर आपने ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया, ओके, तो गैस रिलीज हो जाती है, अनकंट्रोल्ड गैस रिलीज, विच इज नोन एज ब्लोआउट। अ ब्लोआउट कैरीज अ स्टैगरिंग कॉस्ट encompassing not only environmental damage but also reputation loss and financial losses totaling crores of rupees. Additionally, the impacted section of the pipeline requires a complete replacement. The impacted section of the pipeline requires a complete replacement also. ठीक है, तो अगर ब्लोआउट हो गया स्टूडेंट्स तो उसका क्या नुकसान है, दैट इज गिवन हियर। कमिंग ऑन द सेकेंड पैराग्राफ, इंडस्ट्री सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डिवाइड द पाइपलाइन नेटवर्क इनटू 3 levels. Level 3 is the part under the seabed, मतलब समंदर के नीचे, जमीन के नीचे. Level 2 is the part above the seabed but in the deep sea, while level 1 is near the surface.
The safety regulations require multiple blowout preventer valves. From now on, simply referred to as valves, to be placed at the three different levels of the pipeline network. The valves are normally kept closed, but when the pressure in any part of the pipeline rises beyond the critical level, nearby valves are opened remotely to release the pressure in a controlled manner to prevent blowout. पॉइंट समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ऐसे बहुत सारे वॉल्व्स हमें लगाने होते हैं तीनों लेवल्स पर, ताकि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप हो जाए तो हम उन वॉल्व को ओपन करके प्रेशर को रिलीज कर सकें. तो दिस इज व्हाट द कंपनी इज डूइंग. द नंबर ऑफ वॉल्व्स across the pipeline helps localize the pressure release, with a greater number of valves providing a backup mechanism. अब देखो, the number of valves across the pipeline helps localize the pressure release. तो लोकल लेवल पर आप वहाँ पर प्रेशर रिलीज कर सकते हो, तो ब्लोआउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. With a greater number of valves providing a backup mechanism, helping in improving pressure localization in case of a blowout. Given that the valves themselves can occasionally malfunction and not release the pressure when needed, using a higher number of valves ensures that a malfunctioning valve can seek the safety of a nearby functioning valve. तो बहुत सारे वॉल्व्स लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. तो अगर कोई वॉल्व अगर माल फंक्शन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जिस समय हमको प्रेशर रिलीज करना था उस समय वो खुला ही नहीं, तो एटलीस्ट अगर और भी वॉल्व्स होंगे तो वी कैन यूज देम. तो बहुत सारे वॉल्व्स होने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं. अंडरस्टैंड? ओके. अ वॉल्व कैन माल फंक्शन इन टू वेज. इट मे फेल टू रिलीज प्रेशर व्हेन नीडेड as previously mentioned, or it can leak gas during regular operation, resulting in unwanted losses. When a valve malfunctions, it necessitates manual replacement. तो malfunctioning दो तरह से होती है, that is given to us. जिस समय प्रेशर रिलीज करना था उस समय प्रेशर रिलीज हुआ ही नहीं, एंड सेकेंड अनवांटेडली रेगुलर ऑपरेशन में भी गैस का लीकेज हो जाना. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. इन द डीप सी नेटवर्क 30% ऑफ द valves are located at level 3, जो कि सबसे नीचे है, which is the deepest level. The remaining valves are evenly distributed between the top two levels. These valves are critical to ensuring safety and are exclusively supplied by Go Valve, a highly specialized manufacturer that holds a monopoly in the country's market. Okay? हर चीज को समझना, जैसे ये जो Go Valve है, are critical to ensuring safety and exclusively supplied by this company. और इस कंपनी की क्या है? मोनोपोली है. और 30% वॉल्व्स तो लेवल 3 पर है और बाकी दोनों लेवल्स पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ब्लोआउट का नुकसान क्या है वो भी दे दिया, और ब्लोआउट को अवॉइड करने का तरीका क्या है दैट इज ऑल्सो गिवन. उसको अवॉइड करने का तरीका है वॉल्व्स लगा दो, और जितनी ज़्यादा लगाओगे उतना बेटर है, ताकि कोई भी वॉल्व अगर माल फंक्शन भी करे तो स्टिल वी कैन रिलीज द प्रेशर at local level itself. So this is something which is given to us. Okay? चलिए अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस पर आते हैं. अब क्वेश्चंस पर आते हैं. पहला क्वेश्चन, चलिए ऑल द स्टूडेंट्स, नाउ यू पीपल ट्राई टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Yes, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Go Valve has recently proposed a maintenance package for the valves to deep sea, which includes a clause that whenever a valve at level 3 malfunctions, all valves at that level will be replaced. Accepting the clause will cost a significant premium. The management of deep sea have the following pieces of additional information under consideration. अब students 5 points are given to us and question क्या है? Which of the following combinations of the above pieces of additional information will help the management of deep sea the most in accepting the clause? इसका मतलब है students हमें करना क्या है? इन 5 ऑप्शंस में से एडिशनल इंफॉर्मेशन में से वो 3 बतानी है, तो एक्चुअली कंपनी को कन्विंस करे कि हमें इस क्लॉज को हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करना चाहिए. मतलब गो वॉल्व का ये जो क्लॉज है, ये जो प्रपोजल है, हमें ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए. इवन इफ इट इज कॉस्टली, वी विल हैव टू पे अ बिग प्रीमियम फॉर दैट. द स्टूडेंट्स, द कंपनी should accept the clause. Okay, and for that among these 5 points, कौन से points
कंपनी को एक्चुअली कन्विंस करेंगे? तो दैट इज द क्वेश्चन. चलिए, टेल मी स्टूडेंट्स, व्हिच इज द करेक्ट आंसर? धनराज हैज गिवन द आंसर. ओके, ओके धनराज. चलो भाई, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट करें. यू पीपल डिसाइड. सबसे पहला ऑप्शन, द वॉल्स आर नोन टू बी प्रोन टू मॉल फंक्शन. सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जो वॉल्स है ना, दे आर प्रोन टू मॉल फंक्शन. मतलब इट्स समथिंग विच इज नॉर्मल. तो कोई वॉल्व अगर माल फंक्शन करे, ये कोई बहुत रेयर फिनोमिना नहीं है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना. ओके, दे आर प्रोन टू मॉल फंक्शन. तो इसीलिए स्टूडेंट्स मुझे लगता है फर्स्ट ऑप्शन तो कहीं ना कहीं कंपनी को डेफिनेटली कन्विंस करेगी कि हमें इस क्लॉज को लेना चाहिए. बिकॉज अगर वॉल्व माल फंक्शन करेंगे एंड दिस बिकम्स अ रेगुलर फिनोमिना, और इफ दे आर प्रोन टू माल फंक्शन, इट इज बेटर. जैसे आप क्लॉज लेंगे, okay, you can be rest assured. It is just like taking an insurance, taking a guarantee from the go valve company. मुझे लगता है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन तो कहीं ना कहीं कंपनी को कन्विंस करेगा कि यस, हमें इस क्लॉज को एक्सेप्ट करना चाहिए. अच्छा, कभी भी स्टूडेंट्स किसी ऑप्शन के बारे में, इफ यू पीपल आर नॉट एबल टू टेक अ कॉल, आप हमेशा इसका अपोजिट ले लो. चलो मान लेते हैं कि दीज वॉल्स दे आर नॉट प्रोन टू माल फंक्शन. तो बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि वो माल फंक्शन करते हैं. तो आप स्टूडेंट्स डेफिनेटली अगर बहुत रेयर है तो इस क्लॉज को एक्सेप्ट करने की जरूरत कहाँ है? कभी कभार होगा तो कंपनी खुद संभाल ले. अंडरस्टैंड? ओके. सेकेंड, एनी माल फंक्शन इन वन वॉल्व ऑफन रिजल्ट्स इन लीकेज फ्रॉम द नेबरिंग वॉल्स. स्टूडेंट्स क्या लगता है, बी कंपनी को कन्विंस करेगी टू एक्सेप्ट दिस क्लॉज? एब्सोल्युटली करेगी. क्यों करेगी? आई विल टेल यू. सबसे पहले तो यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लॉज. The clause is that whenever a valve at level 3 मतलब सबसे नीचे, understand, all valves at that level will be replaced. एक भी वॉल्व में अगर माल फंक्शन हुआ, एक भी वॉल्व में, तो सारे फंक्शंस, सारे वॉल्व्स रिप्लेस होंगे. अब सेकंड क्या कहता है? एनी माल फंक्शन इन वन वॉल्व ऑफन रिजल्ट्स इन लीकेज फ्रॉम द नेबरिंग वॉल्व्स आल्सो. इट इज बेटर गो वॉल्व. दिस कंपनी इज गिविंग दैट एश्योरेंस. अगर एक भी वॉल्व में माल फंक्शन होगा तो हम सबको रिप्लेस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स भी यही तो कहता है कि एक में भी अगर माल फंक्शन होगा तो उसका असर सब पर आता है, स्पेशली जो नियर बाई है. बट इज ऑलवेज बेटर. तो बी भी कहीं ना कहीं कंपनी को कन्विंस करता है कि यस, हमें इस क्लॉज को एक्सेप्ट करना ही चाहिए. तो यस, ए एंड बी बोथ इट सीम्स टू बी ओके. तो अगर मैं स्टूडेंट्स ऑप्शंस पर जाऊं तो या तो आंसर बी हो सकता है या पॉसिबली आंसर डी हो सकता है. चेक करते हैं अभी सब. सी, Go valve is ready to negotiate a discount if the clause is accepted. I do understand. इसका कॉस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट है. बट क्या स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्टिव पैसे बचाना है यहाँ पर? मैं जानता हूँ कि इट इज़ कॉस्टली, बट क्या डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? दैट इज गोइंग टू बी द क्राइटेरिया वेदर वी वांट टू एक्सेप्ट दिस क्लॉज और नॉट. और कभी अगर ब्लो आउट हो गया तो स्टूडेंट्स उसका कितना बड़ा कॉस्ट होगा. एंड सेकेंड, वॉल्स में जो माल फंक्शनिंग है वो भी तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द कंपनी, और वो भी लेवल 3 पर जो सबसे नीचे हैं. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स डिस्काउंट कंपनी चाहेगी जरूर, बट दैट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस डिसीजन शुड बी टेकन. इसीलिए सी आई विल नॉट गो विथ. फोर्थ, replacing the valves at level 3 is a very difficult job, okay, which is best done by go valve. अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली डी तो अपने आप में बहुत ही सॉलिड चीज है. लेवल 3 पर वॉल्स को रिप्लेस करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और गो वॉल की उसमें मास्टरी है. तो अच्छा है ना, आप अगर जो मास्टर है उसी को दे दो कि कभी ऐसा हो जाए तो यू विल हैव टू डू इट. तो ये आउटसोर्स करना तो एनी टाइम एक अच्छा डिसीजन होगा. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट्स अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एब्सोल्युटली अवनी, शलोम, यस. फिफ्थ, द चांसेस ऑफ प्रेशर बिल्डअप्स आर हायर नियर द सी बेड. The chances of pressure buildups are higher near the seabed. Near the seabed मतलब level 3 पर. अब स्टूडेंट्स देखो, मुझे क्या करना है? फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल हेल्प द मैनेजमेंट द मोस्ट इन एक्सेप्टिंग द क्लॉज. हालांकि फिफ्थ भी कुछ हद तक ठीक है, भाई नीचे प्रेशर बिल्डअप ज्यादा होता है, लेकिन देखो प्रेशर बिल्डअप होने के बाद भी अगर वॉल्स माल फंक्शन ना करे तो हमें ये क्लॉज करने की जरूरत ही नहीं है.
तो केवल नीचे प्रेशर बिल्डअप ज्यादा होता है इसलिए मुझे ये क्लॉज एक्सेप्ट करना इज नॉट द पॉइंट। नीचे प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से वॉल्व्स माल फंक्शन करे उसके चांसेस ज्यादा हैं, तो दैट इज द रीजन आई विल हैव टू गो फॉर दिस क्लॉज। तो केवल प्रेशर बिल्डअप होता है ज्यादा, दैट इज नॉट द पॉइंट विच इज कन्विंसिंग। उसकी वजह से जो माल फंक्शनिंग होती है वॉल्व्स में, दैट इज व्हाट विल कन्विंस मी टू एक्सेप्ट दिस क्लॉज। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ई को मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो बेस्ट आंसर हियर विल बी सेकंड ऑप्शन बी। तो कम ऑन टेल मी स्टूडेंट्स, आप लोग एग्री करते हैं इससे? द बेस्ट आंसर इज बी। अभी मैं 2 क्वेश्चन और लेने वाला हूं और स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, ओके। एंड ये मत देखो कि इस पूरे सेशन में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, बट हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो अप्रोच हम आपका बिल्डअप कर रहे हैं, हाउ यू पीपल हैव टू इवेंचुअली टेक अ कॉल, दैट इज गोइंग टू बूस्ट योर एक्यूरेसी अ लॉट। इसीलिए स्टूडेंट्स पूरे पेशेंस के साथ, इवन इफ यू पीपल आर कॉन्फिडेंट कि सर ये तो बहुत ईजी हम कर ही लेंगे, दैट ओवर कॉन्फिडेंस शुड बी अवॉइडेड। अच्छी तरह से समझो। और कई बार स्टूडेंट्स हमारा एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस होता है और इसकी वजह से हम उसके बियॉन्ड जा ही नहीं पाते हैं। स्टूडेंट्स उससे भी हमको बचना चाहिए, ओके। इसलिए लिसन टू मल्टीपल ओपिनियंस एज वेल, ओके, राइट। चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। A startup SafeVolve has started importing a technologically superior brand of valves from abroad, which boasts a significant reduction in gas leakage. SafeVolve has established a large inventory of these imported valves, but is struggling to gain foothold in the local market. An NGO working for the protection of marine lives has appealed to DeepSea to replace their existing valves with the product from SafeVolve. However, the installation of this new valve will require substantial modification in the pipeline, entailing unknown challenges in installation and maintenance. Okay, so which of the following reasons, if true, can DeepSea best decide to publicly reject the appeal? ध्यान रखना, 5 ऑप्शंस में से कौन सा रीजन DeepSea can best decide to publicly reject the appeal? अपील किसने की? ओके, दैट NGO कि भाई आप ये सेफ वॉल्व, ये जो वॉल्व्स हैं इन्हें यूज करो और गो वॉल्व के जो वॉल्व्स आपने ऑलरेडी लगा रखे हैं उन्हें रिप्लेस कर दो, ओके, सो दैट ये जो वॉल्व्स हैं नए वाले, ओके, इनमें लीकेज के चांसेस बहुत कम है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी व्हिच कैन बी द बेस्ट आंसर हियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कम ऑन एवरीवन। Yes, everyone start giving the answers. अच्छा, कुछ ऑप्शंस को तो आप बहुत इजीली रूल आउट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन वी कैन रूल आउट इजीली, सेफ वॉल्व डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन इंपोर्ट्स एंड मे बी प्रोन टू प्रोक्योरमेंट इश्यूज। वैसे भी स्टूडेंट्स आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑलरेडी इट इज मेंशन कि उनके पास एक बहुत बड़ी इन्वेंटरी है, तो प्रोक्योरमेंट इशू तो है नहीं, अंडरस्टैंड। चलो, ज्यादातर बच्चों का आंसर थर्ड ऑप्शन है, ओके, लेट अस चेक इट। Now see student, second कहता है GoVolve is a reputed brand and had a partnership with DeepSea for a long time. Students understand, ये भी कोई strong reason है क्या कि भाई हम बहुत टाइम से GoVolve के साथ काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग SafeVolve के valves नहीं यूज कर सकते हैं। This is not a strong reason at all. मैं अगर किसी के साथ पार्टनर कर रहा हूँ लंबे टाइम से, बट अगर कोई नई चीज आती है तो यस यू विल हैव टू एक्सेप्ट, और पब्लिकली ये कहना कि भाई हम अपने पुराने पार्टनर्स को नहीं छोड़ेंगे, okay, even if the newer technology is still better, that is not a very sound reason in fact, okay। चलिए, तो B cannot be the correct answer. Coming on C, GoVolve follows the strictest global industry standards of leakage prevention. Students देखो, NGO क्या चाहता है कि लीकेज ना हो, okay, which of the following reasons if true, इसका मतलब है ये जितने भी options हैं ये absolutely true है, these are not mere opinions, understand। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ना कि GoVolve follows the strictest global industry standards of leakage prevention, this is true। एंड स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन DeepSea को दे देता है कि क्यों वो GoVolve के साथ अपना टाई अप नहीं छोड़ना चाहता। कि भाई तुम्हारा कंसर्न क्या है कि लीकेज ना हो, तो सबसे स्ट्रिक्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो GoVolve फॉलो करता है, तो हम तो उस कंपनी के साथ अंडरस्टैंड, हम खुद चाहते हैं लीकेज ना हो। इसीलिए स्टूडेंट्स,
सी बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन जो पब्लिकली कंपनी कह भी सकती है. ओके, तो सी इज इंडीड द करेक्ट आंसर. ओके, चलो. ओके, I'll see that question. एक बार अपन इसको एड्रेस कर लेते हैं. तो ओनली सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव मैंडेटेड द यूज ऑफ द न्यू वॉल्स. हाँ, केवल कुछ डेवलप कंट्रीज ने अभी तक मैंडेट किया या यूज करना स्टार्ट किया. देयरफॉर हम अभी नए वॉल्स यूज नहीं करेंगे. तो यू वांट टू गिव द मैसेज कि अल्टीमेटली आवर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट द अदर कंट्रीज आर डूइंग. आई थिंक स्टूडेंट्स इवन दैट रीजन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. यार हो सकता है बहुत कम कंपनीज ने या बहुत कम कंट्रीज ने अभी तक इनको यूज करना स्टार्ट किया हो. सो वॉट, अगर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है एंड इफ पीपल फील फिट यू कैन स्टिल यूज इट. तो इसीलिए ये रीजन देना कि बाकियों ने बहुत कम यूज किया, दैट इज अगेन नॉट जस्टिफाइड. ओके, एंड कमिंग ऑन फिफ्थ वन, द न्यू वॉल्स कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द एग्जिस्टिंग वॉल्स. ये तो स्टूडेंट्स वैसे भी दे रखा है कि यस इसमें सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा एंड स्टूडेंट्स इसमें पैसा भी लगेगा. अंडरस्टैंड. तो पैसा ज़्यादा लगेगा, डबल लगेगा, इसीलिए हम लोग जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसी को कंटिन्यू करेंगे. एंड मारिन लाइफ्स को लेकर अगर थ्रेट भी है तो वी डोंट केयर फॉर दैट. फॉर अस मनी मैटर्स. ये फिफ्थ ऑप्शन जो है ना, इट इज गिविंग दैट काइंड ऑफ इंप्रेशन. तो एनीवे, फिफ्थ इज इंडीड नॉट द करेक्ट आंसर. तो हियर स्टूडेंट्स द बेस्ट आंसर इज इंडीड थर्ड ऑप्शन. बहुत ही बढ़िया. चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन बिकम्स द राइट आंसर. अब अपन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस बिकम्स द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम डेटा. A startup SafeWall has started importing a technologically superior brand of walls from abroad, which boasts a significant reduction in gas leakage. An update to industry safety regulations has come out, which allows a lower number of walls in a pipeline network if technologically superior walls similar to those imported by SafeWall are used for the entire network. स्टूडेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नया अपडेट है वो ये कहता है कि अगर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर वॉल्स जो सेफ वॉल बनाता है अगर हम वो यूज करते हैं तो इन दैट केस इवन लोअर नंबर ऑफ वॉल्स इन द पाइपलाइन विल बी सफिशिएंट. अब स्टूडेंट्स, डीप सी की प्रॉब्लम क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. Deep sea is aware that the more the number of walls, the better is deep sea's ability to contain blowouts. First line, very important. Blowouts को avoid करने के लिए deep sea is aware that more the number of walls. So even if students जो नया इंडस्ट्री सेफ्टी रेगुलेशन है, okay, वो जो अपडेट है, despite that, deep sea is aware that कि more the number of walls, the better is deep sea's ability to contain blowouts. Contain का मतलब है कंट्रोल करना, कम करना. However, a higher number of walls increases the chances of a leakage. हालांकि उसका threat क्या है? लीकेज बढ़ सकता है. Therefore, Deep Sea is contemplating a proposal to reduce the number of walls to almost half by replacing the existing walls by Go Valve with the walls sold by Safe Wall. अब स्टूडेंट्स, दो चीजें. एक तो वो जानता है कि ज्यादा वॉल्स होंगे तो ब्लोआउट के चांसेस कम होंगे, हालांकि ज्यादा वॉल्स होंगे तो लीकेज के चांसेस ज्यादा होंगे. तो डीप सी इज एनीवे कंटेम्पलेटिंग कि हम लोग ये नए वॉल्स लगा दें और नंबर्स को ऑलमोस्ट हाफ कर दें. अब क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following observations is the most helpful in rejecting the proposal? अरे वाह, हमें रिजेक्ट करना. अंडरस्टैंड, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो, डिसीजन मेकिंग में ज़ैट इज नॉट आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक अब डीप सी को क्या करना चाहिए. नो, ज़ैट तो कह रहा है कि डीप सी ने डिसाइड कर लिया कि रिजेक्ट करना है. अब उसे जस्टिफाई करने वाला बेस्ट ऑप्शन क्या है? ओके, तो स्टूडेंट्स, क्या लगता है विच इज द बेस्ट आंसर? So which of the following observations is the most helpful in rejecting the proposal? And what is the proposal you people have understood? Okay, कि गो वॉल के जो वॉल्स हैं उनको रिप्लेस करना सेफ वॉल से और नंबर्स को हाफ करना. तो इसे स्टूडेंट्स हमें रिजेक्ट करना है. तो which option, which observation will help deep sea in that? Okay, Avani has given the answer. Okay, चलो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, सारे ऑप्शंस वन बाय वन, और जिन बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं स्टार्ट गिविंग द आंसर्स. देयर इज नो क्लियर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ वॉल्स रिक्वायर्ड एट अ सर्टेन लेवल. देयर इज नो क्लियर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एटलीस्ट इंडस्ट्री अपडेट ये कहता है कि नंबर ऑफ वॉल्स कम करेंगे तो भी चलेगा.
ओके स्टूडेंट समझना, कोई क्लियर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है, इस वजह से मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दूं. आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग रीजन. If a go ball valve is opened to prevent a blowout, the chance of leakage from the walls within a certain distance increases. Student second क्या कहता है? If a go ball valve is open to prevent a blowout, the chance of leakage from the walls within a certain distance increases. तो second option तो इनफैक्ट ये कह रहा है कि अगर हमने ब्लोआउट से बचने के लिए गो वॉल या किसी वॉल को ओपन किया तो आसपास के वॉल्स में भी चांसेस ऑफ लीकेज बढ़ जाता है. तो ये तो इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसके अगेंस्ट जा रहा है. सेकेंड ऑप्शन तो उल्टा ये कन्विंस कर रहा है डीप सी को कि द थ्रेट इज मोर इन द एग्जिस्टिंग सेटअप. सेकेंड ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. सेकेंड ऑप्शन तो एक तरह से इस प्रपोजल के फेवर में जाने के लिए कह रहा है. सेकेंड ऑप्शन तो ये कह रहा है डीप सी को यस वी शुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, बट हमें स्टूडेंट्स वो ऑप्शन बताना है जो कि इस प्रपोजल को रिजेक्ट करता है. ओके, so you people could understand second option is actually convincing deep sea to accept the proposal rather than rejecting, because it says that the existing setup is risky. Okay, coming on third, the superiority of the safe wall products is only in terms of preventing leakage, not blowouts. थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि सेफ वॉल के जो वॉल्व्स हैं वो केवल लीकेज को प्रिवेंट करने में सुपीरियर है, ब्लोआउट्स को प्रिवेंट करने में नहीं. ओके ठीक है, मुझे लगता है कि जब मैं थर्ड ऑप्शन पढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं ये सेफ वॉल के अगेंस्ट जाता है. सेफ वॉल इज नॉट फिजिबल इनफ टू अवॉइड द ब्लोआउट्स. तो वो लीकेज तो अवॉइड कर सकता है, ब्लोआउट को नहीं कर सकता. तो कहीं ना कहीं मैं सेफ वॉल का जो डिसएडवांटेज है, जो ड्रॉबैक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो पॉसिबली दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस जो एक्चुअली डीप सी को कन्विंस करे कि हमें क्यों सेफ वॉल के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. एनीवे स्टूडेंट्स सी मैं वापस से कंसिडर करूंगा. कमिंग ऑन फोर्थ, एट लेवल 1 द चांस ऑफ प्रेशर राइज इज मच लेसर कंपेयर टू द अदर टू लेवल्स. सो व्हाट, बट बाकी दोनों लेवल्स के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, अंडरस्टैंड. तो डी इज एनीवे नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज आउट ऑफ सिंक. फिफ्थ कहता है लेवल 3 a blowout results in more time consuming and expensive repairs compared to the other two levels. लेवल 3 में स्टूडेंट जब भी ब्लोआउट होगा तो उसे रिपेयर करना बहुत चैलेंजिंग है और डीप सी को ये पता है. इसका मतलब है स्टूडेंट्स फिफ्थ ऑप्शन ये कहता है कि डीप सी का सबसे बड़ा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो क्या है, ब्लोआउट को प्रिवेंट करना. तो केवल गैस लीकेज को अवॉइड करना इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न. डीप सी इज मोर कंसर्न अबाउट अवॉइडिंग ब्लोआउट्स. और डीप सी को ये पता है जितने नंबर ऑफ वॉल्स ज्यादा होंगे ब्लोआउट के चांसेस उतना ही कम होगा. दिस इज समथिंग विच इज गिवन इन द वेरी फर्स्ट लाइन. तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अगर मैं सी और ई में कंपेयर करूं, नाउ देयर आर टू क्लोज चॉइसेस व्हिच आर देयर. एनीवे स्टूडेंट्स आई हैव मेड अप माय माइंड एंड आई नो दैट व्हिच इज द करेक्ट आंसर, बट स्टिल आई वांट यू पीपल टू टेल मी सी और ई में से अगर मैं कंपेयर करूं तो व्हिच इज द बेस्ट आंसर. सी और ई में से व्हिच इज द बेस्ट आंसर. स्टूडेंट्स द बेस्ट आंसर हियर इज इंडीड फिफ्थ ऑप्शन, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन कहीं ना कहीं ये कहता है कि ब्लोआउट को अवॉइड करना इज मोर इंपॉर्टेंट एंड जितने ज़्यादा वॉल्स होंगे उतना ब्लोआउट होने का चांस कम होगा. तो इसीलिए नंबर ऑफ वॉल्स को कम करके ब्लोआउट के रिस्क को बढ़ाना. आई थिंक स्टूडेंट्स डीप सी शुड नॉट डू दिस, should not do this, and this is how deep sea can reject this proposal. अब स्टूडेंट सी में प्रॉब्लम क्या है मैं समझा देता हूं. The superiority of the safe wall products is only in terms of preventing leakage, not blowouts. अब you people try to understand. वॉल का काम ब्लोआउट को रोकना नहीं होता. वॉल का बेसिक काम होता है कि कहीं पर भी प्रेशर बिल्डअप हो गया उसको रिलीज कर देना, अंडरस्टैंड. तो अब आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैं सेफ वॉल का वॉल्ट भी लगाता हूँ वो भी प्रेशर रिलीज कर देगा और गो वॉल का भी, अंडरस्टैंड. प्रेशर दोनों रिलीज करेगा, ठीक है. और अगर हम टाइमली प्रेशर रिलीज कर दें तो ब्लोआउट तो वैसे भी अवॉइड हो जाएगा. तो ब्लोआउट अवॉइड करने में वॉल की क्वालिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली प्रेशर को रिलीज करना. एंड दिस इज अ डिसीजन व्हिच द एम्प्लॉइज एंड द कंपनी हैज टू टेक. इसमें वॉल की क्वालिटी बहुत मैटर नहीं करती, ओके, अंडरस्टैंड. तो इसलिए यू पीपल अंडरस्टैंड कि सेफ वॉल का एडवांटेज क्या है. वो एडवांटेज है गैस लीकेज को अवॉइड करता है, ओके. सेफ वॉल्व लगाने से ओके ब्लोआउट अवॉइड होगा ऐसा नहीं, अंडरस्टैंड.
और हालांकि केवल गो वॉल्व लगाने से ब्लो आउट अवॉइड हो जाता है सॉरी, गो वॉल्व लगाने से या जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उससे ब्लो आउट अवॉइड हो जाता है, इवन दैट इज नॉट द केस। ओके, स्टूडेंट्स ब्लो आउट अवॉइड करने में गो वॉल्व एंड सेफ वॉल्व दोनों का इक्वल रोल है। एंड वाई इज इट सो? बिकॉज टाइमली प्रेशर रिलीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक्चुअली बात अच्छी क्या है कि गो वॉल्व में नंबर ऑफ वॉल्व्स बहुत है, तो विच द कंपनी वांट्स सो दैट ब्लो आउट कैन बी अवॉइडेड। इसीलिए स्टूडेंट्स बेटर है कि ज़्यादा नंबर ऑफ वॉल्व्स में जाना चाहिए कंपनी को और एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स सी से एनी टाइम बेटर ऑप्शन होगा, दैट इज फिफ्थ ऑप्शन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, सो थिंक ओवर वॉट एवर आई हैव टोल्ड। ओके, मैं जानता हूं कि जब मैं क्लास में भी ले रहा था फिजिकल क्लास में, तो सो मेनी स्टूडेंट्स सेड कि सर सी इज द करेक्ट आंसर। बट एनीवे स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू सी इज एक्चुअली नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज ब्लो आउट को अवॉइड वॉल की सुपीरियोरिटी नहीं कर रही है। ओके, इसीलिए स्टूडेंट्स ब्लो आउट को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है नंबर ऑफ वॉल्स को बढ़ाना। ओके, एंड दिस इज व्हाट द कंपनी नोज, एंड देयरफॉर ओके आई थिंक स्टूडेंट्स फिफ्थ इज अ बेटर चॉइस कि जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसी में जाना चाहिए। ओके, स्टिल स्टूडेंट्स आई वांट योर कमेंट्स। अगर आपका आंसर कुछ और है तो प्लीज यू पीपल गिव mention in the comment along with proper reason also. Okay, the students, this was the discussion for the day. These 6 questions, they will actually help you a lot in finally giving the correct answers and understanding the complete approach of decision making. Okay, तो ये discussion generally lengthy होता है because मैंने हर option को discuss किया, तो मैंने straight away अपने answers नहीं बताए, मैंने साथ में ये भी बताया कि सर कि स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कौन सा ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स सब कुछ समझ में आ गया आपको। ऑल द स्टूडेंट्स कम ऑन, फटाफट कमेंट करके बता दो यस। तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेट आंसर्स दे सकते हैं। डन, चलिए, सो थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लाइव विद मी। एंड शलोम, आपका जो क्वेश्चन है, सर आई एम वेरी वीक इन ग्रामर, आई मीन टू एस इट, एनी क्विक सॉल्यूशंस, इट शुड हैव अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस। देखो, ग्रामर में अगर बहुत वीक हो तो पूरी ग्रामर को मास्टर करने की कोशिश मत करो। 2-3 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कर लो, टेंसेस कर लो, प्रपोजिशंस कर लो। ये 3 चैप्टर्स को अगर मास्टर करोगे तो मैक्सिमम ग्रामर के क्वेश्चंस हैंडल हो जाएंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो एंड देन सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय ऑलवेज थिंक अबाउट अ पॉसिबल रीजन व्हाई दिस इज द आंसर। हर आंसर को अगर मैं प्रॉपर रीजन के साथ जस्टिफाई करूंगा तो स्टूडेंट्स आप देखोगे आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ओके, चलो, चलिए, सो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो वंस अगेन कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स अ लॉट।